Okay. So call star, and this is also fine. Or else, let me comment this and show you that I can also say call, or I can just simply say dollar and star like this, right? Will also work. And let's see this. I click on run, and then I just rerun the application that was already. अरे यार ये काशाला recursive value spark config needs. Recursive value spark config needs. Why am I getting this issue? Just, I'm so sorry, friends. Just a minute. Session. Sessions. Session. Ting, 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 ting. Correct. Spark. Yeah, it worked. Maybe कुछ और issue होगा, and I am perhaps using it. I was using it wrongly. So ठीक है, ये हो गया. And as you can see now, what I'm demonstrating to here is that select dollar star. Now what I'm expecting here is that I'm going to get all the records. Can you see the star works? Select star works. All with me, right? Oh, I'm sorry for that delay. Yes. All in full swing, full. Yes. Cool. Good. Now, एक important point है.
When I say select this, and I can very well say booking underscore ID, right, comma, I'll say dollar another column, and then I say, for example, customer underscore ID. This is what it is. Now from here onwards, only these two will be there in effect. What I mean to say is that, see this, see what I'm doing. Okay, I'm going to get only these two columns. I can also have a select statement after this. I can very well have a select statement after this. But that select statement will work on, as you can see, these two are the only things now, booking ID and the customer ID. But यहाँ पे अब मैं dot select करूंगा, and if I say star, I'll get these two columns. मतलब एक बार select हो गया, फिर उसके अंदर से अगर कुछ select करना है, so this is how it's going to work. Now here, if I try to give something which is not there in the above select statement, it's not going to work. It's not going to work. For example, इसके अंदर एक और field है called order date. अब ये नहीं चलेगा, यहाँ पे order date नहीं चलेगा. Why? Because you know data set ऐसे बनते हुए आ रहा है. This is how the data frame is getting created. So you've got not the data set, I'll call it data frame. That's the right word. Booking ID, customer ID, उसमें से अगर अभी फिर से कुछ select करना है तो you can do it. Otherwise, this is not. You see this? There is an error. It says the field is not found. Can you see this here? Column order date does not exist. Did you mean any one of the following booking ID, customer ID? So it doesn't work. So ये आपको ध्यान में रखना है. Another thing that you got to keep in mind is you can always add additional columns. अच्छा नहीं, उसके भी पहले. Wait a minute. I'll say as booking को मैं comment कर देता हूँ. It's not needed really. As booking को मैंने comment कर दिया. So that's then also it's fine because JSON से उसने data लिया. It automatically does the inference of the schema. I repeat, it automatically does the inference of the schema. It will automatically do the schema inference, right? Which is by default true. Infer schema is by default true. देखो आ गया. कोई जरूरत नहीं है मुझे वो as booking. But अभी देखो मजा देखो. I say customer ID, comma, I say dollar, I'll say order underscore date. Okay, this is what I have written, comma. और क्या है इसके अंदर देखो, order date है, transport type है, involved parties है. Okay, so I can say dollar and I say transport underscore type. ये है, समझो, something like this. Okay. Now, when I retrieve this, I'm expecting that I'm going to get the values. That's fine. You know, there's no issue at all. I'm going to get the value. मिल जाएगा मुझे. No big deal. Same thing, but okay, ये हो गया, right? देखो ट्रांसपोर्ट टाइप भी आ गया. अभी what if transport type is not present at all in the data structure? So what I'm going to do now is that in order to demonstrate this to you, I will not take two because it will be difficult for me to make changes in two files. I'll just create three over here, booking JSON 3 out here. And I will just make sure that I remove this booking ID from here. Okay, I've removed the booking ID from here. I'm removing the booking ID from here just for the sake of explaining this to you. Okay, and I am removing the booking ID from here. I am removing the booking ID from here. एक मिनट, हाँ बराबर है. ये बुकिंग आईडी निकाल दिया, ये भी बुकिंग आईडी मैंने निकाल दिया, ये भी बुकिंग आईडी मैंने निकाल दिया. ठीक है. अरे यार मैं बराबर नहीं निकाल रहा हूँ क्या? ओके, 3 में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, that's fine. So you see this, and I'll do one thing. Instead of having 10 records, I'll just simply have, you know, these 3 records. So I'll remove my booking ID from here. Take a look. Okay, cool. So there is no booking ID. Okay, sorry. अब वो उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा. I'll go back over here and I will read only and only this particular file. Instead of reading the entire data, I'll say data/booking bookings-3.json. तो अब यही फाइल वो रीड करेगा. And you see this is going to give me an error. Why? Because booking ID is not there. Take a look. Take a look. Booking ID is not there. Now this is very interesting. I spent, I had to spend a good amount of time. बहुत सारे मुझे errors आए और फिर बाद में ये पूरा concept समझ में आया. So I don't want you all to spend that time instead and get this. See, it very clearly tells me that there is no such field found. Column booking ID does not exist. But what I believe is that when I say as booking, this
helps me to define the data structure for my data frame. And that data structure will conform to the booking class. And booking class does have booking ID. Now I'm expecting that it will not give me an error. That booking ID does not exist. It is just the value of that will be null. That's what I'm expecting. मैंने करके नहीं देखा है, but I understand this is how it is. नहीं एरर दे दिया उसने मुझे. Okay, कॉलम booking ID does not exist as booking किया है तब भी. Okay, let's see this in first schema. Let me try this out. Is equal to accept false. Anyways, देखते हैं इसको. अगर अभी ये नहीं चला तो we will give it up. But there is another point that I wanted to bring up. वो मैं आपको बता दूं. I was expecting कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर दे रहे हो तो वो ये एरर नहीं देना चाहिए और उसका वैल्यू वो नल देना चाहिए. नहीं दिया उसने. So it is important that the value is available. Now see, this is how it is. So forget about this. ये तो हम लोग वैसे भी नहीं यूज कर रहे कहीं पे भी. तो forget about this. Now this is going to give me definitely an error. Booking ID, this will give me an error. अब now see how things work. I go to my booking3.json once again, and I will just copy paste this booking ID from one place. अब क्या होगा पता है, ये मैंने और कोई भी तीन में से कोई भी एक रो में मैं वो डाल दूंगा वैल्यू. आई एम पुटिंग इट इन द थर्ड रो. So for the first row it is not there, and for the third row it is there. Now it will not give me an error. This is how it works. This is how it does the inference. It takes all in all the databases, which even if one single record has got that particular column, then in that case it will not throw that error, and it will give me the value of booking ID as null for the first two rows, and it will give me the value of the booking ID for the third row. Can you see this here? I hope I'm able to convey across the point. All of you all got this? Yes. है ना? ये समझ के चलना है आपके. अब अगर इसका में अंदर भी रहा, इसके अंदर भी रहा तो डेटा आ जाएगा, नहीं रहा तो नहीं आ जाएगा. उसने वो एरर नहीं दिया. अब होता क्या है? Listen to this very carefully. All there with me, right? Murli, you're also there, right? Yes. Yeah, sure. अब अपना जो डेटा हमारा जो OTM से आता है, that data that comes from OTM, उसका standard rule है that it does not put the value of any property as null if the value is not available in the OTM database. It Correct. will simply not put that property at all in the JSON. Correct. Yes. ऐसा ही है ना? Yes. है ना? वो वैल्यू वो इंक्लूड ही नहीं करता है. तो अगर मेरी फाइल के अंदर, and this holds true whether you're reading the whole data. देखो जब भी आप पूरा डेटा रीड करोगे ना, आप यही मान के चलो कि ये पूरा तीन एक ही फाइल है. तो रूल्स में कोई फर्क नहीं आने वाला है. इट विल स्टिल होल्ड ट्रू. सो हमारे पास हो सकता है किसी बैच में, ओके, किसी बैच में ऐसा डेटा आ जाए कि 10 उसके अंदर या 20 ऑब्जेक्ट्स था, 20 में से एक भी ऑब्जेक्ट में वो फील्ड नहीं था. हो सकता है. Yes. And then when you try to refer to it, there is an issue. Yes. There is a serious issue. वो अपना तो कोड फट जाएगा वो. Yes. तो अब इसके अंदर बहुत टाइम गया मेरा. And the best way that I found is this. There is something called see, I have a function here called has column. हमने लिखा है फंक्शन. ये मैंने एक यूटिल में डाल दिया. तो एक काम करते हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी ना, आई विल क्रिएट अ, देखो ये यहाँ पे कॉम स्पार्क के अंदर मॉडल आ रहा है ना. आई वांट टू फ्लैटन द डेटा, आई वांट टू फ्लैटन पैकेजेस. सो आई कैन क्लिक हियर. नाउ दिस विल फ्लैटन द पैकेजेस and it will appear like this. So what I'm going to do here is that I'm going to create a package and I'm going to give it as the name as util. Here I'm going to create a class and I'll say
ऑब्जेक्ट एंड आई से यूटिल्स। ओके, और यूटिल्स के अंदर मैं ये एक फंक्शन डाल देता हूँ, राइट। और ये मैं इंपोर्ट कर लूंगा डेटा फ्रेम, एसक्यूएल स्पार्क डेटा फ्रेम, कॉलम भी एसक्यूएल स्पार्क कॉलम मैंने ले लिया। ट्राई आपको इंपोर्ट करना है ये स्काला का यूटिलिटी में से। लिटरल इज अगेन फ्रॉम व्हेनेवर यू वांट टू रिप्रेजेंट अ लिटरल, यू विल रिप्रेजेंट अ लिटरल विद एलआईटी लिटरल। ओके, उसके बारे में और बाद में हम बात करेंगे। मैंने ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन मुझे इंटरनेट से मिल गया, अपना स्टैक ओवरफ्लो से मिल गया, फंटास्टिक फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, बुकिंग 3.json में जाके ना ये निकाल दूंगा कस्टमर आईडी। ये देखो यहां से मैंने निकाल लिया। सो दिस इज सपोज टू गिव मी एन एरर, अदरवाइज ना बुकिंग आईडी नॉट फाउंड देगा, क्योंकि एक भी रिकॉर्ड में नहीं है ना बुकिंग आईडी, Yes. तो मुझे वो एरर देगा। लेट अस गेट द एरर वंस अगेन। देखो एरर दे दिया, बुकिंग आईडी नॉट फाउंड। अभी तो मेरा कोड फट गया। तो लेकिन आई कैन नॉट, बिकॉज मुझे किसी किसी ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि वो कॉलम हो और किसी ऑब्जेक्ट में ना हो। बहुत है Right. अपना ऐसा लोड ईटीए ना, ये ना वो ना वेसल ना फ्लाइट नंबर ना क्या 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 है, इजंट इट। Yes. सो अब क्या करना है, यहाँ पे वो फंक्शन है ना, देखो what that function does. Has column is the name of the function. It takes data frame as a parameter and it takes the path. So what I'm going to do here is that I'm going to call that function like this. I'll say has, अच्छा एक मिनट, हाँ, okay, path here like this. So I'm going to do what, I'm going to say has column ऐसे लिखूंगा मैं, and I will import this. You can see this from मेरा यूटिलिटी क्लास से import हो गया। डॉलर नहीं डालना है, ये अपना बुकिंग डीएफ है ना, ये जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसी को ही पास करना है एज पैरामीटर कॉमा, एंड देन से बुकिंग आईडी। नाउ इफ द वैल्यू इज देयर फाइन, और एल्स इट विल गिव मी अ नल। रिकर्सिव वैल्यू ये क्यों करते हैं अगर ओके ठीक है। So what am I going to do is I'm going to keep this exactly as it is. मैं यहां से ये निकाल दूंगा, इसका जेसन मेरा बुकिंग्स डीएफ में आ गया, मैं यहाँ पे डाल दूंगा कुछ। वही हो गया ना, मैंने बुकिंग डीएफ जेसन रीड करके इसमें डाल दिया और अभी आगे प्रोसेस कर रहा हूँ, विच इज ओके। हाँ चलो सी, अभी देखो वो नल दे देगा मुझे तीनों के लिए। Okay, you can see this. I'm getting booking ID as null, but it did not throw an error. Yes. It did not throw an error. अब मैं क्या करूंगा, I will demonstrate to you. I'll go to bookings3.json and I will just bring that back. अभी वापस से मैंने क्या किया, तीन थर्ड रो में है, दो रो में नहीं है। अब जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा फर्स्ट टू रोज के लिए नल दे देगा, थर्ड का वैल्यू है तो दे देगा, लेकिन अगर कस्टमर आईडी किसी भी रो में नहीं है तो नल दे देगा। वही चाहिए ना अपने को। ये देखो सबका नल दे दिया, बट इसका B001 दे दिया भाई। ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, Yes. बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अभी इसको मैं कंप्लीट करता हूं। अभी देखो स्काला, दिस इज वेयर स्काला स्टेप्स इन। स्काला के अंदर देयर इज अ फीचर कॉल्ड पार्शियल, ये स्काला का फीचर है। देखो जब आप एक लाइब्रेरी स्पार्क की लाइब्रेरी यूज करते हो ना तो उसके फंक्शंस वगैरह यूज करोगे, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, दिस इज द फीचर ऑफ स्काला। स्काला के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फंक्शंस। व्हाट डज दिस मीन, ये देखो आप इस तरह से पार्शियल फंक्शंस बना सकते हो। अब ये जो फंक्शन है ना, आप देखो कि पार्शियल मतलब एक पैरामीटर ऐसा दूसरा पैरामीटर ऐसे डिफाइन होता है। दो पैरामीटर है तो दोनों के दोनों अपने अपने ब्रेस ब्रैकेट, अपने अपने राउंड ब्रैकेट्स में है। आई कैन गो बैक ओवर हियर। अब ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज मुझे फिर ऐसे कॉल करना पड़ेगा। देखो अभी कॉल हो रहा है बराबर, कोई इश्यू नहीं है, इट विल वर्क एग्जैक्टली एज पर माय एक्सपेक्टेशन। बट अगर ऐसा ही करना था तो फर्क क्या पड़ा, नहीं, लेकिन बहुत बेहतरीन एक इसके अंदर फीचर है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो पार्शियल फंक्शन का ना ये फीचर है, वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल पार्शियल फंक्शन। आपने ये पार्शियल फंक्शन डिफाइन किया और हो सकता है इसकी वैल्यू जो है ना डिफॉल्ट आपको पहले पास करके रखनी हो,
और बस फिर बाद में बार बार वो वैल्यू नहीं पास करनी है। मतलब यू कैन define yet another function which will have the partial value passed to it and already kept. What I mean to say is this, I'll go back over here and after this booking df वगैरह हो गया मेरा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा HC या फिर मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसको कोई साइन भी दे सकता हूँ, जैसा लोगों ने डॉलर दिया ना, मैं भी मेरा कुछ दे सकता हूँ, राइट, मैं कुछ भी, लेकिन अभी मैं HC रखता हूँ। यहाँ पे मैं बोल दूंगा bookings df और यहाँ पे अंडरस्कोर, दिस अंडरस्कोर टेल्स स्काला के ये पार्शियल फंक्शन डिफाइंड है HC, इसका बाकी का वैल्यू जब कॉल करेंगे तब तब दिया जाएगा। तो सी HC इज इक्वल टू हैज कॉलम, I am giving the reference of that function. This is why Scala is known as a functional programming language wherein functions are treated as first class citizens. ये भी कभी एक ऑब्जेक्ट है, HC is an object which has got a reference to has column, जिसके अंदर booking df ऑलरेडी पास कर चुका है। अब मुझे बताओ पार्शियल फंक्शन का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे मुझे बुकिंग डीएफ, अगर मैं HC यूज करूंगा तो क्या मुझे बुकिंग डीएफ पास करना पड़ेगा? नो। अब मैं 1000 बार HC या नीचे यूज करूंगा तो मुझे वो बार बार पूरा, नहीं तो कितना लंबा हो जाता है, हैश कॉलम हैश कॉलम हैश यस। ऑर्डर पे ये बुकिंग्स डीएफ 50 जगह आएगा। और अगर मैंने कल को नाम चेंज कर दिया होगा उसका बुकिंग्स डीएफ का कुछ और, तो मेरे को सब जगह चेंज करना पड़ेगा, अभी सिर्फ यहाँ पे चेंज कर। देखा आपने कितना फंटास्टिक फीचर है ना स्काला का, पार्शियल फंक्शन दिस इज कॉल्ड। ये देखो अभी ये यहाँ पे सेम चीज विल वर्क, HC रेफरेंस टू दिस, इट वर्क्स लाइक अ चार्म। ओके, ये देखो आ गया B001 लास्ट कॉलम का, बाकी नल आ गया। एंड दिस नल भी जो आ रहा है ना, दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। यहाँ पे बिकॉज मैंने लिटरल नल, यहाँ एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्राई कर रहे हैं कि अगर कोई फैटल एरर आता है, df.path whatever is the data frame, it is trying to evaluate the path. If that path is successful, if it is there, then it returns the df.path, that means returns the column. This df.path actually returns to your column. It refers to that column. अगर वो कॉलम है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये लिटरल रिटर्न करेगा। अब अगर यहाँ पे लिटरल में मैंने नल पास किया है, अगर आपको कुछ ऐसे पास करना है एनए वगैरह तो वो भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, आप नल इज द बेस्ट वे टू डू इट, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, बट दैट्स हाउ यू गॉट इट राइट। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर, क्लियर। क्लियर ना, है ना? अच्छा, अभी एक तो ये हो गया, अभी दूसरा, you can always refer to the properties in a nested way. What does that mean is that भाई bookings, मेरा एक क्वेश्चन है। sure यहाँ पे जब सारी बुकिंग आईडी अवेलेबल नहीं होगी किसी बैच के अंदर, हाँ सो वो नल सभी को रिटर्न करेगा, बट साथ साथ में उसने जो कॉलम का नेम था उसको भी नल रिटर्न किया था, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा? कॉलम का नेम भी नल आया था, मतलब रिजल्ट में, ये सभी रिजल्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग को टर्मिनल में दिख रहा है बुकिंग आईडी नल नल इन अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे भी नल दिया था उसने? यस हाँ। मेरा तो प्रोसेसिंग में कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो नाम बनाता है ना, वो नाम बनाता है, ये आप बोल रहे हो नल? यस यस करेक्ट। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, ओए कुछ गलत हो गया, देखते हैं अभी क्या नाम देता है। गुड गुड गुड, वेरी नाइस, हाँ शाबाश, बुकिंग आईडी दे दिया यस 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 है ना, बुकिंग आईडी दे दिया, शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस, मजा आ गया। अच्छा अब ये हो गया, तो पार्टिसिपेंट कुछ ऐसा बोलता है जो अपने को मालूम है और अपना चल जाता है ना, तो मजा आता है। कुछ ऐसा पूछा जो अपने को भी नहीं समझता ना, अपने को भी नहीं मालूम है, तो मजा नहीं आता। अच्छा ये हो गया, अभी नेक्स्ट मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छा आई गो बैक एंड आई जस्ट स्टिल हैव, एक में तो रखूंगा मैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या आ जाएगा वैल्यू। अच्छा अभी यहाँ पे अपने पास देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्वॉल्व्ड पार्टीज
के अंदर वी हैव क्वालिफायर आईडी, ठीक है, yes, एंड नेम। देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है इन्वॉल्व पार्टीज में, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे वापस से 2 है, am I right? थर्ड में 2 है, इसमें 1 है और ये यू नो व्हाट, इतना फंटास्टिक एक चीज देता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कॉमा एक्सप्लोड, I'll say dollar involved underscore parties dot, I'll say as involved पार्टी, मैंने ऐसे ऐसे मैं नाम दे दूंगा। अब देखो वो उसको एक्सप्लोर कर देगा और उसके कॉलम्स बना देगा। देखो ये देखो, आप देख रहे हो इन्वॉल्व पार्टी, देखो इसने ऐसा कर दिया, ये देखो आप जॉन डो वगैरह देखो, आप देख रहे हो ऐसे बना दिया। तो एक काम करते हैं अभी हम लोग, मैं आपको और अच्छे से इसके अंदर से डॉट, आई विल से सिलेक्ट डॉलर स्टार कॉमा, अब मैं लिखता हूं डॉलर इन्वॉल्व्ड पार्टी डॉट, आई विल से क्या था उसका क्वालिफायर है और नाम है ना, सी 2 प्रॉपर्टीज क्वालिफायर इन द नेम, सो आई विल से क्वालिफायर ओके कॉमा डॉलर, I say involved party dot name. Let's see now. अरे बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना इतना पावरफुल है ये। एक फटा, नो सच स्ट्रक्ट फील्ड क्वालिफायर नहीं, क्वालिफायर आईडी, क्वालिफायर आईडी है, सॉरी क्वालिफायर आईडी, ओके क्वालिफायर, बाकी दूसरा नेम ही है ना। अभी कोई सोचेगा कि इतना टाइम इतना स्लो, ये स्लो नहीं है, ये एक्चुअली क्लस्टर बन रहा है, इसलिए इसको इतना टाइम लगता है। देखो लो आ गया, ये देख रहे हैं क्वालिफायर आईडी एंड नेम आ गया, देख रहे हो आप देख रहे हो yes. राइट। 3 रिकॉर्ड्स के कितने हो गए, 4 records हो गए, yes. 4 रिकॉर्ड हो गए, कैसे एक्सप्लोड हो गया। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं बोलूंगा डॉट ड्रॉप, ये वाला नहीं चाहिए ना अभी मेरे को, मैं कॉलम को ड्रॉप कर दूंगा, वो डॉलर करके दूंगा तो भी चलेगा, ऐसे भी चल जाएगा, एक कॉलम का नाम, हाँ ठीक है। हाँ कुछ पूछ रहे थे अतिक। Yeah, that's the thing actually. Duplication हुआ ना, तो प्रोसेसिंग में डुप्लीकेशन आगे let's see, हैंडल कैसे मैं पहले देख लेता हूँ, आप आगे बता रहे हैं उसके बारे में। नहीं काय का डुप्लीकेशन, कहाँ डुप्लीकेट, जैसे हमारे लिए बुकिंग डुप्लीकेट हुई, करेक्ट, 2 रिकॉर्ड्स थे। अरे चाहिए थी तो किए, नहीं करना है मत करो। हाँ, नहीं, इज जस्ट दैट कि अगर मुझे कोई प्रोसेस करना है, एक रिकॉर्ड है, मुझे कुछ फिल्टर करना है, मेरे लिए बुकिंग एक ही रिकॉर्ड है, बट मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ क्वालिफायर के बेसिस पे, और आगे जो रिकॉर्ड मिले वो मैं चाहता हूँ कर सकते हो, कर नहीं, लेकिन हाँ वेरी गुड क्वेश्चन अतिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। पहले अभी एक चीज और मैं बताता हूँ, फिर उस पर भी आ जाऊंगा, यस, उस पर भी आ जाऊंगा। तो देखो अच्छा एक चीज और है, हाँ माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा प्लीज, यस, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा आपको। आप अगर वही कोड जो पहले लिखते थे जावा में उसको सुपर इम्पोज यहाँ पर करोगे, घटिया कोड बन जाएगा ये भी। पहले मैं फिल्टर कर लूं, फिर उसमें से निकाल लूं, फिर नहीं 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 नहीं। एक बात, चलो एक चीज मैं बोल दूंगा ना, इंशाल्लाह you will be spot on and you will end up writing anyways good code. What is that? जो पहले प्रोसेस करते हुए आ रहे हैं ना, उसके ऊपर बाकी के कॉलम्स की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हर एक कॉलम जिसको आप जनरेट कर रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आईडी को हमने कुछ नहीं किया, कस्टमर आईडी डेटा सेट में है सो है, हमने ले लिया। लेकिन अगर एक भी कॉलम को आप कर रहे हो तो वो कॉलम विद कॉलम से आप बनाओगे, और जो भी कोड उसके अंदर लिखोगे मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग प्रायर टू दैट।
वो किसी और कोई कॉलम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, राइट, लेस देयर इज क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। वो भी मैं कुछ केसेस है वो मैं बता दूंगा आपको। तो अभी मैं एक चीज और बताता हूँ, चलो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू गो टू बुकिंग जेसन। अभी मैं एक काम करता हूँ, देखो आपने देखा होगा कि ये डेटा यहाँ पर कैसे है। तो फिर यू आर विद अस राइट एवरीवन, तो फिर आते काके हुए। यस भाई, यस 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 समझ में आ रहा है ना, अजहर वगैरह सब लोग सब समझ में आ रहा है सबको? यस भाई समझ में आ रहा है। यस यस See, this training is exactly for the purpose wherein कि जब मैंने जो टाइम डाल चुका है वो टाइम आप लोगों को ना डालना पड़े, और Yes. यहाँ पे ना हमारे हम लोग को फटाफट 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 डेवलप करना है, राइट? यस सो अभी देखो, ये देख रहे हो आप, ये जेसन कौन से फॉर्मेट में है आप देख रहे हो? जेसन जैसा जेसन है, बट एक्चुअली जेसन नहीं है ये। यस इसके अंदर देखो ये एंड में यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, तो चलो कॉमा निकाल दो तो भी ये चलेगा, यहाँ से भी कॉमा निकाल दो चलेगा, ये भी कॉमा निकाल दो, अभी भी ये कोड चलना ही चलना है, ये चलेगा, वो कोई कॉमा का जरूरत नहीं है। देखो कोई एरर नहीं देगा मुझे, एक्चुअली इसी फॉर्मेट में वो एक्सपेक्ट करता है, एक ही लाइन में एक्सपेक्ट करता है, पूरा का पूरा जेसन एक लाइन। सो हर एक जेसन, हर एक रो, पूरा जो जेसन है जिसका वो रिकॉर्ड बनाएगा, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, एक लाइन में हो। देख रहे हो आप, देखो आगे बराबर कोई एरर नहीं है। यस लेकिन आपको हो सकता है आपके पास कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जो जो इसमें हो, मतलब ऐसे फॉर्मेट में हो कि एक एक ऑब्जेक्ट एक एक फाइल के अंदर हो, सपोज अगर वैसा है आपके पास। व्हाट आई मीन टू से इज दैट, अब मैं यहां से ये दो को निकाल देता हूं और मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एफ करता हूं, तो ये प्रॉपर जेसन हो गया अभी अपना। Am I right or not? प्रॉपर जेसन हो गया ना? यस यस अब एटलीस्ट एक रिकॉर्ड तो आना चाहिए ना मेरे पास, एक ही रिकॉर्ड है इसके अंदर, तो एक रिकॉर्ड तो आना चाहिए ना। नहीं आएगा, एरर थ्रो करेगा, यस वो एरर थ्रो करेगा और वो करप्ट रिकॉर्ड बनाएगा। जो एरर थ्रो करेगा ना, वो बोलेगा कि तुम्हारा रिकॉर्ड करप्टेड है। अब सोच सोच के अपन थक जाओ यार, इतना परफेक्ट मेरा जेसन है, वो बोलता करप्ट कैसे होगा। ये देखो, ये देख रहे हो करप्ट रिकॉर्ड। तो हमको उसको ये बोलना पड़ता है कि देख भैया, ये जो मेरा ऑप्शन में डालूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा मल्टी लाइन ट्रू, मतलब मेरा जेसन जो है ना वो मल्टी लाइन में है। अब ले लेगा वो, ले लिया, एक रिकॉर्ड बराबर दे दिया। अच्छा, वो एक्सप्लोर किया हमने इसलिए दो रिकॉर्ड आ गए, फर्स्ट वाले का दो है ना, देख रहे हो? यस यस मल्टी लाइन टू, ये याद रखना। अब अगर हो सकता है कि अपने पास, ये क्यों जरूरी है अपने को, बिकॉज कुछ 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 जगहों पे अपने पास जो डेटा है ना पूरा के पूरा ये होगा, लाइक आई मीन मल्टी लाइन में होगा डेटा, तो सो दैट्स हाउ इट इज। अभी जैसा अब ये हो गया, ठीक है, बुकिंग जेसन, ये भी हो गया। तो मैं कॉमा करता हूँ यहाँ पे, कॉमा नहीं करूंगा। देखो ये हो गया, कॉमा यहाँ पे भी कर दिया और कॉमा ये भी कर दिया। सो that's how it is. I don't know this will work or not work, but then whatever the case is, right? अब मैं इसको पूरा जैसा था वैसा कर देता हूँ। I think I have put the point across. अच्छे से आपको अभी मेरे ख्याल से समझ में आ गया, राइट? ये चलो पूरा जैसा था पहले वैसा फाइल हो गया। I'll just go back and I'll cross check कि ये चल रहा है बराबर, so that we can proceed further. So far so good. अभी हम लोग एक और चीज करेंगे इसके। सपोज मेरे पास बुकिंग जेसन के अंदर आ गया सब डेटा, हे सो ऐसा बुकिंग 320, बुकिंग 3.json। ओके, इन द मीनवाइल देखो अपने पास ये डेटा है। चलो अभी सपोज आई हैव अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट, सपोज, और वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक दिस। अरे दो ही क्यों आ रहा है?
bookings -3.json सब आना चाहिए ना? Yes. Multi-line. लेकिन अपने केस में मल्टी लाइन मैंने रखा है एंड इट वर्क्स फॉर एवरीथिंग, मतलब जो फॉर्मेटेड होगा, जो फॉर्मेटेड नहीं होगा तो भी चलो। हाँ ठीक है, ओके चलो आ गया, सब डेटा आ गया। नाउ लिसन टू दिस। Suppose here I have something like this, which is like, say, I'll say location colon, and then I have within location I've got the data like this. I'll say location xid colon, I'll say 101 comma, or I'll say L001 comma, and I'll say location name, okay, colon, I'll say Hyderabad. सपोज ये है, ठीक है, लेकिन ये एरे नहीं है, बस नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। Will I be able to refer to this? Yes, I will be able to refer to this. How will I refer to this column? I will refer to this column as follows. Again, take a look here. I'll say comma. अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सप्लोड निकाल देता हूँ, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ना निकाल नहीं देता, सो दैट यू नो इट रिमेन्स देयर। एंड एक्सप्लोड यहाँ से निकाल दिया एंड मैंने ये ठीक कर लिया, बुकिंग आईडी वगैरह ठीक है, एज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, एंड सिलेक्ट स्टार स्टार कॉमा बाकी के जो था वो, एंड ठीक है। अभी जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है उसके लिए ये काफी है। आई से आईडी और ये मुझे ड्रॉप भी निकाल देना है। आई से कॉमा कॉमा, आई से डॉलर, I'll say $. How will I refer to that? I'll say location dot location name. ये बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। That means, in other words, you can very well have what? You can refer to the nested columns. अब मुझे booking ID and location name मिले। देखो, ये रहा, देखो, राइट? पहले का रिकॉर्ड आ गया हैदराबाद, अदरवाइज नल। अब सपोज पहले में भी नहीं है तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे? सपोज पहले में भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मेरे प्रोसेसिंग में ये डेटा सेट में नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा मुझे बताओ, क्या यूज करूंगा? Partial function. हाँ, हैज कॉलम वाला HC यूज करूंगा, तो अगर है तो वैल्यू मिलेगी, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, राइट? दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ये हो गया। अभी मुझे आप लोगों को एक और चीज बताना है। यस, suppose my requirement is this, that give me the list of only those records where involved party name is John Doe, और सपोज ऐसे दो रिकॉर्ड है, यहां पर भी जॉन डो है, यहां पे भी समझो जॉन डो है। ओके, सही पड़ेगा। देखो, ये वाला भी जॉन डो है, इसके पास भी जॉन डो है, ये दो रिकॉर्ड में जॉन डो है, मुझे यही चाहिए। अब इसको कैसे रिफर करूं, क्योंकि ये तो एरे है ना, this is an array. Yes. Correct? So what I'm going to do here is this. I will go to my utils. I'll go to utils. Here अपना utility class. यहाँ पे ना मैं एक function define करूँगा. I'll say define whatever is the name of the function. For example, I will say the name of the function is I'll say get John Doe records, something like this, you know, कुछ एक function का नाम. Now I will take the value out here. I will take the value. I'll say the value is and what I want is that, हाँ, वो पूरा array आएगा। यहाँ पे जो आएगा ना, ये पूरा क्या आएगा? ये बुकिंग जेसन का ये जो है इन्वॉल्व पार्टी, ये एरे आएगा, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि अपने पास इन्वॉल्व पार्टी का केस क्लास हमने बनाया था मॉडल में, यू रिमेंबर? बुकिंग के अंदर इन्वॉल्व पार्टी, एंड इट इज एन एरे ऑफ इन्वॉल्व पार्टी, राइट? आई विल मेक यूज ऑफ दिस क्लास इन्वॉल्व पार्टी. So what am I going to get here in this function is
utilities में, I'll say involved parties and it is of type array. Array of what type? I'll say involved party. अब देखो यहाँ पे class काम आ जाती है. And what is it that I'm going to return back? I'm going to return back, ये अपने ऊपर है, अपने को क्या रिटर्न करना है, मेरे को boolean रिटर्न करना है. मतलब ये कि ये फंक्शन है वो बताएगा कि जॉन डो एग्जिस्ट और does it exist or not. Okay, contains, I'll say John Doe. Okay, और I'll say boolean. I'll open and close bracket. अब मुझे यहाँ पे boolean रिटर्न करना है, करेक्ट? JOHN जॉन, ठीक है, ये boolean रिटर्न करना है. ठीक है, boolean, ठीक है. ये मैंने फंक्शन बना लिया. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, इन्वॉल्व्ड पार्टीज. अब ये तो नॉर्मल स्काला है. जिन लोगों ने फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे काम किया इन जावा, दे मस्ट आल्सो बी एबल टू वेरी इजीली गेट इट. दिस इज एन array, this is a normal array. So here I will say filter x. अच्छा, यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग में सिंगल एरो, वो ऐसा एरो नहीं होता है, डबल एरो वाला एरो होता है. हाँ, यहाँ पे. And what I'm going to do is that filter what? X dot, I'll say name dot equals, I'll say John Doe. Okay, ये मुझे रिटर्न कर रहा है, सॉरी, इक्वल्स John Doe. ये रिटर्न करेगा. अच्छा, यहाँ पे स्काला में यू डोंट हैव टू राइट रिटर्न, जरूरी नहीं. जो भी लास्ट स्टेटमेंट होगा वही रिटर्न वैल्यू होगी. इज दैट क्लियर? जो भी लास्ट स्टेटमेंट होगा ना वही रिटर्न वैल्यू होगा. तो मेरे को रिटर्न लिखूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज अ बूलियन एक्सप्रेशन. इज द वैल्यू ऑफ नेम इक्वल टू जॉन डो, ये मैं ये मालूम कर रहा हूँ, राइट? सो वो रिटर्न करेगा. रिटर्न करने के बाद मैं ले लूंगा काउंट ले लूंगा. अब काउंट लेने के बाद मैं यहाँ पे हाँ, ओके. So here I'll say val count is equal to, hey, count. अच्छा, तो मेरे को जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ये फिल्टर देने की. हो गया, डॉट काउंट बाय कंडीशन x. ओके, x डॉट नेम इक्वल टू जॉन डो. स्पेलिंग यही है ना जॉन डो की, JOH. हाँ, बराबर है. हाँ, हो गया. लो, तो मेरे को काउंट रिटर्न करेगा. ओके, तो मैं क्या रिटर्न करूँ यहाँ पे, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट एग्जिस्ट, और एल्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, फॉल्स. इसकी भी जरूरत नहीं, ठीक है. ट्रू, एल्स फॉल्स. ये हो गया, ठीक है. आई एम रिटर्निंग अ वैल्यू. सो दिस विल गिव मी वेदर इट कंटेन्स, गिवन रो कंटेन्स जॉन डो और नॉट. अब मैं इसका ना UDF बनाऊंगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन. I repeat, I will create a user defined function. Now how do I create a user defined function? मुझे यहाँ से अपना कॉपी करना पड़ेगा, TW globals and global functions. So I will define a function like this, and I will call it as contains John Doe UDF. UDF stands for what? What does UDF stand for? User defined Function. What is this user defined function? This user defined function is the function that you can use org.spark.spark.sql.expressions. ये वहां से हमको लेना है
UDF is again a function that you can take in over here, और ये function का नाम यहाँ पे डाल देना है. So now this gets registered as a UDF. UDF is something which can be used in the select statement in Spark SQL. It can be used along with select, or it can be used anywhere while processing the data. So when I go back over here, I will do what? I will say location name and then dot, I'll say filter. Filter में मैं क्या डालूंगा? I will say filter में X, and I'm going to pass that X as a parameter. No, I don't need to say X. एक मिनट, हाँ. Dot filter, हाँ पूरा रो ही जाएगा बराबर. Condition column. So I will, वो मैं UDF यूज करूंगा. कौन सा UDF है अपने पास? Contains John Doe UDF in brackets $, and I will pass the value of that column. Which column? Involved underscore parties. Column का नाम तो ये है ना, involved underscore parties, isn't it? देखो, involved underscore parties. That's what I'm going to pass as parameter. Now, having done this, I'm expecting that it will give me only and only those records where it contains John Doe. See this, Hyderabad, this and this. Getting it? 11, 14, and 18. Let's check it out. Bookings.json. And this is 11, correct? 14, ये रहा. देखो, यहाँ पे भी जॉन डो है, यहाँ पे भी जॉन डो है, और ये रहा जॉन डो यहाँ पर भी है. देखा आपने? 18 में भी है. Got it? हो गया काम. So when you have a complex logic which involves running through the nested object and perform something, then in that case, this is how you can do it. You can have your functions created, and this function now can be used in anything. मतलब आप ये तो मैं boolean रिटर्न कर रहा हूँ, आप कुछ और रिटर्न कर सकते हैं. आप एक कोई और एक you can have some kind of generated value. I'll give you a very good example. अपने ही केस में, see this. I'll say a bookings transformer. Here you are, but this bookings transformer is from, yes. देखो यहाँ पे मैंने बहुत जगह UDF यूज किया है. The best is this. ही मैंने involved parties का UDF यूज किया है, वो बाद में बताता हूँ. Shipment type. ओके, इन्वॉल्व पार्टी स्कैफ. ये देखो स्कैफ कोड, ये देखो, ये बहुत अच्छा है. ये देखो ये, और फिर ये देखो ये देखो, ये पूरा पूरा मेरा कोड है ये. दिस इज हाउ आई हैव गॉट द स्कैफ कोड. सो आई हैव गॉट टू, बिकॉज इन्वॉल्व पार्टी से स्कैफ कोड आएगा ना. सो मेरी इन्वॉल्व पार्टीज में, अच्छा मैं फाइंड कर सकता हूँ. सो इतना पावरफुल है. फाइंड फंक्शन इज अवेलेबल डियर अतीक. यस सर. देखो फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं. इफ एल्स एंड इफ. देखो फाइंड किया तो, और नल. मतलब ये कि अगर इन्वॉल्व ये कैरियर का वैल्यू क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो. पार्टी क्वालिटी कैरियर होना चाहिए. सो द इन्वॉल्व पार्टी, वो वाला इन्वॉल्व पार्टी जिसमें ये इन्वॉल्व पार्टी क्वालिफायर GID इज इक्वल टू कैरियर, तो वो होगा. अगर नहीं मिला तो हो सकता है ना कोई भी इन्वॉल्व, 10 इन्वॉल्व पार्टी में से कोई भी कैरियर नहीं है, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कैरियर? नल. अगर नल है तो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया. चाहिए तो नल ही रिटर्न कर सकते हैं अगर चाहिए तो. एल्स, अभी ये जो कोड है ना मेरा, आप ये जो कोड है, ये कोड देखो. हाल मुरली, यू आर आल्सो सीइंग दिस? Yep. Yes. Yep. Tufail and everyone else. Yes. देखो मेरी बात सुनो. ये प्रोग्रामिंग करके जो हम कमाते हैं ना, उससे भी ज्यादा कमाएंगे तेल बेच के. रश्मि बहुत बड़ा बिजनेस है तेल का. खंबात में, हमारे खंबात में कितने तेल के बड़े बड़े व्यापारी है. अकीक बेच के भी कमा सकते हैं. अकीक स्टोन आता है, राइट. और भंगार का धंधा करके भी कमा सकते हैं. बंबई में जो हमारा घर है, बिल्कुल हमारे जो पड़ोसी है सामने रहते, बहुत बड़ा भंगार का बिजनेस है. दे आर किंग. स्क्रैप उठाते हैं वो लोग बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में से, और वो बेचते हैं वो लोग. पूरा साइकिल है, पूरा
हम क्यों कर रहे हैं? पैसा भी अच्छा लगता है हमारे को, वी लव मनी, वी लव टू अर्न, बट मजा बहुत आता है यार। Yes. और मजा कब आएगा? व्हेन यू राइट क्लीन कोड, ऐसा कोड। आज अभी अभी वाला आई एम टॉकिंग टू यू ना, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन टू यू हाउ मेरे को कितना मजा आ रहा है। वैसे ये कोड मैंने चैट जीपीटी से ही लिया है बट चैट जीपीटी को अरे यार तुम्हारा बाज दुआ भी मांगते हो तो खुदा इज केपेबल ऑफ डूइंग एंड गिविंग यू एनीथिंग, बट मांगना भी तो आना चाहिए ना। Yes. दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यू मस्ट नो हाउ टू टॉक टू चैट जीपीटी, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो मैंने बड़ा इसका इफ एल्स एंड इफ लिख डाला, as same as what we have over here। Yes. हाँ, पहले ही अपना FR booking. FR bookings। अब आप देखो ये, प्लीज आई वांट ईच वन ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड दिस। ये देखो, ये रहा स्कैक कोड, स्कैक कोड, स्कैक कोड, ये रहा स्कैक कोड का। ये देखो स्कैक कोड क्या कर रहे हैं हम लोग स्कैक कोड के लिए, पहले तो स्कैक कोड के लिए एक लिस्ट में सब डाल रहे डेटा। ये बहुत अच्छा लिखा है माय डियर अतीक, फंटास्टिक, बट इट इज नॉट मेंटेनेबल। Yes. किसी को मेंटेन करना होगा ना, उसकी नानी मर जाएगी। ये है, बट फंटास्टिक जॉब है, फंटास्टिक जॉब है, रियली प्राउड ऑफ यू। ओके, तो ये यहाँ पर है, और ये आपने लिस्ट बनाया। फिर लिस्ट बनाने के बाद आपने इसको, ये रही, ये वाली लिस्ट है आपकी, आप देख रहे हो ये वाली लिस्ट है, ठीक है, Yes. स्टैक कोड की ये लिस्ट है। अब मैं ना इसको, और उसके अंदर से फिर देखो ये रखा है कैरियर क्वालिफायर, देख रहे हो आप कलेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो। Yes. अच्छा, मेजर में जो आपको ये बोलना था कि बार बार हम लोग यहाँ पे नल चेक कर रहे हैं, नल चेक कर रहे हैं, नल चेक कर रहे हैं, रेफ काउंट है, वापस से नल चेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। Yes. Yes. अगर आप सिर्फ और सिर्फ नल चेकिंग का कोड हटा दो तो फिर भी ये कोड विल बिकम क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। Yes. जब कोई कोड समझ में नहीं आ रहा होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स चैटीनेस, बिकॉज ऑफ इट्स वर्बोसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? बिकॉज ऑफ इट। सब लोग है ना यहाँ पे, Yes. अजहर, शाहरुख, Yes, yes. मुशर्रफ। Yes, sir. क्लीन कोड लिखना सीखना है, ऐसा कि कॉलर ऐसा कर सको, आप मुझको ताव दे सको, बोले देखो ये कोड मैंने लिखा है। अब ये कोड के अंदर इतना नल 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 में, अच्छा ये नल नहीं है तो फिर ये नहीं तो नल, अच्छा फिर वो नहीं है तो वो नहीं, अच्छा वो नल, अच्छा नल नहीं है। अरे वर्बोसिटी जितनी ज्यादा होगी इतना प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। कोड ये तो चल रहा है प्रोडक्शन में, ये फंटास्टिक चलता है, फंटास्टिक, बट मेंटेनेंस में प्रॉब्लम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बोसिटी? ये देखो, वर्बोस का क्या मतलब है? यूजिंग और एक्सप्रेशन मोर वर्ड्स देन नीडेड। इतना मस्त डेफिनेशन है, देखो, मोर वर्ड्स देन नीडेड। तो मैंने चैट जीपीटी को पूछा, तो मैंने भी लिख दिया वैसे, इफ वाला पूरा कोड लिखा है मैंने इधर। मैंने पूरा कोड लिखा, इफ एल्स इफ एल्स। मैंने फिर वो पूरा कोड को कॉपी किया, और कभी भी ये, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम है माय डियर, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर क्या करने का पता है, मैंने देखो ऐसे किया, देखो ये मेरा अपना ये जेवीपी के अंदर अपना ये, मैं अपना जेवीपी डॉक्स, और मैं इस पे मैं एनालिसिस कर करके इस पे मैं काम, मैं एक अलग ही सेक्शन बना देता हूँ प्रॉम्प्ट्स का। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉम्प्ट्स का, और मैं सीधा चैट जीपीटी में टाइप नहीं करता, वहां पे एक लाइन में टाइप करने में बहुत इश्यू है, यहां टाइप करने का। कोड देखो कितनी जगह पे मैंने, देखो ये स्कैक कोड का, देखो मैंने यहाँ टाइप किया था, देखो ये देखो स्कैक कोड का सिंपल, फिर पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन लेके, फिर ये देखो, फिर मैं ऐसा, गिव मी द कोड विद कॉलम टू जनरेट अ कॉलम कॉल्ड वेसल नेम सच दैट इज एक्सेसिबल, और पूरा यहाँ पे कोड डाल दिया उसने, मुझे सिंप्लीफाई करके दे दिया। राइट, ये देखो इस तरह से, ये रहा पूरा, ये देखो इस तरह से ऐसे लिखने का। अभी ये भी मैंने लिखा था और इसका भी मैंने कुछ किया था, तो इस तरह से यू मस्ट नो हाउ टू टॉक। तो वो पूरा इफ एल्स एंड इफ है ना, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी में, बोला गिव मी अ बेटर वे टू मैनेज नल वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉलम्स, या आई मीन दिस एंटायर कोड, गिव मी अ बेटर वे। उसने इतना अच्छा तरीका दिखा, टेल मी इज दिस मोर रीडेबल और दिस इज मोर रीडेबल, बताओ।
Which is more maintainable? Of course, this is more maintainable. You all agree? Yes. Yes. Yes, yes. वो क्या करता है, पहले तो यही दे दिया ऑप्शनल. ये ऑप्शन क्या है, अपना जावा डॉट यूटिल डॉट ऑप्शनल है ना, Yes. Yes. सेम थिंग ऑप्शन ओवर हियर. तो ऑप्शन वो बोलता है कैरियर. व्हाट डज दैट मीन? इट विल आइदर रिटर्न अ नल और इफ इट हैज अ वैल्यू इट विल प्रोसीड फर्दर. सो फ्लैट मैप. तो कैरियर फिर चेक कर रहे हैं कैरियर का कॉन्टैक्ट. अगर वो नल नहीं है तो फिर वो कॉन्टैक्ट का लोकेशन. वो नल नहीं है एल तो उसका रेफनम्स अगर नल नहीं है तो उसका आइटम्स, यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल देना पड़ा, एंड द लेंथ इज ग्रेटर देन 0. फिर अगर वो नहीं है तो फिर उसके अंदर आइटम फाइंड किया, TW स्कैप कोड आ गया डॉट मैप करके, और एल्स एंड में भी अभी भी इफ नहीं है कहीं पे भी. ये पूरा के पूरा विल रिजल्ट इनटू वन सिंगल थिंग कॉल्ड ऑप्शन. दिस एंटायर थिंग अगर कहीं पे एक, और मैंने इसको अच्छे से टेस्ट किया है, मैंने वैल्यूज डाल डाल के टेस्ट किया है, आप इसी क्लास में टेस्ट किया है. ये देखो, नहीं यहाँ पे नहीं, दूसरे में एनीवे मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट किया. ये कैरियर से लेके ये कुछ कोई एक भी चीज अगर नल हुई ना तो ये किधर जाएगा? कितना बढ़िया है बोलो. देखो ये फर्क है. अपने को ऐसे प्रोग्रामर बनना है जो ऐसा कोड लिखे कि कोई देखे तो बोले वाह, कदमों में गिर जाए. एंड अभी विद चैट जीपीटी, विद काइंड ऑफ AI based चैट जीपीटी दैट इज अवेलेबल, वी कैन डू वंडर्स. अभी एक और AWS का प्रोडक्ट आया है, आई मीन एक प्लेटफॉर्म का, कोड विस्पर. कितने लोगों ने सुना है कोड विस्पर? यू कैन कॉन्फ़िगर कोड विस्पर, और कोड विस्पर आपके इंटेलिजेंस के साथ ही इंटीग्रेट हो जाएगा, और आप जो कमेंट्स चालू करो यहीं पर ही आपको कोड विस्पर, इट विस्पर्स कोड, यहीं पर ही आपको कोड स्निपेट्स देगा. माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी लाया है वैसा ही एक टूल, AWS कोड विस्पर ऐसा. तो अपने को ये यूज करना है और फंटास्टिक कोड प्रोड्यूस करना है फॉर आवर कस्टमर्स. सो ये देखो ये है. सो जहां पर भी ऐसा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है ना, वहां पे आपको क्या बना लेना है, क्या बना लेना है, वन वर्ड आंसर क्या बनाना है? UDF. यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेना है. तो अभी अपना स्कैक कोड देखो, हमने यहाँ यूज किया स्कैक कोड UDF, खलास. अब इसके अंदर कोई जाकर देखे तो ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा लॉजिक क्या है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग 1000 UDF बनाते बैठे. दिस UDF इज फाइन, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स फैंटास्टिक, बट इसके अंदर एक ड्रॉबैक है. वो क्या ड्रॉबैक है, कोई मुझे बताए तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ. क्या ड्रॉबैक है? UDF, इट्स नॉट अबाउट UDF, बट जो मैं यहां से फंक्शन कॉल करता हूं, कुछ पास करता हूं और स्कैक कोड लेता हूं, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इधर क्यों चल इसी चीज, टेल मी व्हाट इज द इशू. मेंटेनेंस में सोचो, मेंटेनेंस में स्कैक कोड कैलकुलेशन में स्कैक कोड का कुछ चेंज आया है. क्या प्रॉब्लम है बोलो मुरली, व्हाट डू यू थिंक द प्रॉब्लम इज? स्कैप कोड में कुछ चेंज आया है, इम्पैक्ट ज्यादा होगा. जहाँ जहाँ UDF यूज हुआ सारी जगह पे इम्पैक्ट होगा उसका. नहीं. नहीं. Maybe my question is not perfect. Maybe what I'm trying to say is that in order to understand how SCAC code is generated, I have to get into this source code and understand. Yes. यहाँ पे जाऊंगा, फिर मैं ये पढ़ूंगा, understand, and then come back over here. It is, ये देखो ये वाला में ना मेरे को एक एक प्रॉपर्टी कैसे जनरेट किया ना, मुझे 10 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है. ये फंक्शन में से ये फंक्शन, ये फंक्शन में से वो फंक्शन, ये फंक्शन, जब तक मैं भूल जाता हूँ मैं कौन से प्रॉपर्टी का देख रहा था. अच्छा ये प्रॉपर्टी का, अच्छा ये प्रॉपर्टी का, ये ऑब्जेक्ट का, मेंटेनेंस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो माय क्वेश्चन टू यू इज हियर इज दिस, सॉरी. सो माय क्वेश्चन इज दिस एंड माय पॉइंट इज दिस. क्या मुझे इतनी सिंपल चीज के लिए, क्या मुझे UDF बनाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बना सकता हूँ कि नहीं वेसल नेम के लिए UDF? Yes. Yes, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए.
नहीं अरे कोई बेचारा आता है वेसल नेम, उसको समझ में आ जाता है यार, अगर सेल शिपमेंट एग्जिस्ट है तो सेल शिपमेंट में से वेसल ले लो, नहीं तो अदरवाइज रूट ऑब्जेक्ट से वेसल ले लो। ये कितना इजी हो गया। यहां तक के मैंने यहाँ पे लिखा है खास, मैंने अतीक का नाम लिख लिख के लिखा है। सॉरी अतीक। देखो आई गो टू टूडूज, हाँ टूडूज के अंदर ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो अतीक। अब यहाँ पे ना ये डिपार्चर डेट देखो काफी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ खत्म होता है डिपार्चर डेट, यहाँ शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। ओके, यहाँ पे भी मैं सोच सकता था कि यार मैं अगर ये बनाऊंगा, यूडीएफ फंक्शन बनाऊंगा और वहां पे ये सब इंप्लीमेंट करूंगा, तो एक लाइन में मेरा यहाँ पर काम। अरे ऐसा कुछ नहीं है एक लाइन में, बिकॉज फर्क इतना है, ये उठा के आप यूडीएफ में डालोगे, बस वही फर्क है, इतनी लाइंस ऑफ कोड आपको अदरवाइज भी इंप्लीमेंट तो करनी ही चाहिए। यस और नो? Yes. इनफैक्ट वहां पे ड्रिल डाउन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और फिर यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तो बेहतर यह है कि हम लोग यहीं पर ही लिखे, तो किसी को देखना है कि डिपार्चर डेट कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे ऑपरेट, तो वो पूरा का पूरा यहीं पर ही देख के समझ लेगा वो। इट्स फाइन, अनलेस this entire thing is supposed to be reused in some other place, unless, और वो भी reusability अगर 3 या 4 लाइन का मिलता है ना, तो I would not prefer the reusability, I would prefer readability more than the reusability. Got it? अभी फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ, सॉरी यार मैं आप बोल रहा हूँ, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। यहाँ पे देखो एक है मैपिंग फील्ड, देखो ये एक फंक्शन बनाया मैपिंग फील्ड का, देख रहे हो आप? यस, देखो लोकेशन इंजेक्शन हेल्पर अपन ने ये बनाया है, अपन ने इट्स नॉट यू आई और एनीथिंग, अपन ने ये लिखा है। अब ये फंटास्टिक है, लेकिन ये मैपिंग फील्ड, अब मैं जब यहाँ पर आके देखता हूँ और ये मैं रीड करता हूँ ना, अच्छा कौन से मैपिंग फील्ड ने, तो मेरे को जहां से आपने कॉल किया वहां देखना पड़ता है कि आपने मैपिंग फील्ड हम लोग ने क्या पास किया है। फिर यहाँ पर आता हूँ जब तक कि फिर भूल जाता हूँ, फिर ऊपर becomes very difficult, becomes very difficult. So the crux of the matter here is that we are supposed to write clean code. But anyways, मेरा topic जो main ये भी था कि what is user defined function. So I hope I have successfully explained to you what is user defined function. For example, बहुत अच्छा example स्कैक कोड का ही है, आप लोग यहीं पर स्कैक कोड का ही एग्जाम्पल देख के कभी भी अगर आपको लगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन आपको भी इंप्लीमेंट करना है, दिस इज अ क्लासिक केस वेर इन यू कैन टेक अ लुक एट दिस। ऐसे लिखना है, राइट, क्लीन कोड लिखना है। एंड जो भी आपको काफी सारे लिखा है मैंने यहाँ पे यूडीएफ, देखो ये इतने सारे यूडीएफ्स हैं। गेट इन्वॉल्व पार्टीज, ये रहा गेट इन्वॉल्व पार्टीज। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो इन्वॉल्व पार्टीज, अगर सेल शिपमेंट इन्वॉल्व पार्टीज इक्वल टू नल, या फिर अगर वो एम्प्टी है तो वो रिटर्न करे, अदरवाइज सेल शिपमेंट इन्वॉल्व पार्टीज, ये दो मैंने पास किया, यहाँ पे भी यूज किया। फिर इस कैट कोड का गेट फ्लाइट नंबर, ये थोड़ा सा वहां पे मुझे कॉम्प्लेक्स लगा था, बट अदरवाइज आई बिलीव दिस कुड हैव बीन डन देयर इटसेल्फ, बट देन अदरवाइज वी डू हैव। अभी अगर मैं लिखूंगा फ्लाइट नंबर तो मैं डायरेक्टली फ्लाइट नंबर में वहां से कैलकुलेट करूंगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। ये मैं यूज हो भी रहा है कि नहीं पता नहीं, फ्लाइट नंबर शायद यूज हो रहा है। And then transshipment का, and then involved business entities UDF. This involved business entities UDF actually, creates a new object of type business entity and it returns it back. यहाँ पे देखो map use किया on an array. Map should be simple, right? आतिक, आकिब, तुफैल? Yes. Yes. Okay. कोई सो तो नहीं रहा है ना? नहीं, अरे, जो पहले हंसा वो सो रहा था। अरे ठीक है यार, kidding. Okay, so coming back over here now, so ये तो मैं वैसे भी कमिट करते ही जा रहा हूँ। Okay, तो ये आपके पास है demonstrated, I'll say UDF, and I'm going to commit this code. Here you go, push. Here you are. Okay, so I have explained partial functions. I have explained to you the usage of UDF function. मेरा ये अभी thumb rule रहने वाला है, या or else this will be the guiding principle. Instead of calling it a thumb rule, this will be the guiding principle. Whenever I have got to process something which is an array, तो मैं फिर वो UDF के बगैर कैसे करूंगा मुझे पता नहीं. I don't think I will be able to do it with normal select columns and stuff and all.
गेटिंग द पॉइंट, लाइक मुझे आरे है और आरे के अंदर कुछ लॉजिक करना है, कोई एक रिकॉर्ड उठाना है उसका कुछ, तो आई थिंक यूडीएफ इज द ओनली वे टू डू इट एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, राइट फ्रेंड्स, गेटिंग इट? इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ और ये है that's how it is. Okay, so this is what I wanted to bring to you all. Very important was that involved parties, अरे वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट का भी हमने देख लिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये अगर कॉलम नल है तो वो भी हमने देख लिया है। अभी what if I want to have a column that is actually not there in the data set but has been processed, has been generated with some logic? So you will always say with column. This will help you to come up with more columns, right? With columns, agar plural hai to map of columns, new columns, otherwise with column with a single column. So I can say generated column. Okay, and I will write whatever logic you want to write. You can write that logic over here. I mean an expression, actually an expression which will return to you the value. What that expression would be, I'll say dollar, for example. अगर मैंने लिखा है booking underscore ID और मुझे उसको concatenate करना है, तो concat ऐसे लिखना है, and then अगर मुझे comma and I'll say hyphen P001, तो यहाँ पे क्लोज किया मैंने, नहीं अभी भी नहीं है। Okay, so what I'll do, I'll go to ChatGPT, give me an example of using concat in the expression used with dot with column of data frame. Okay. Sure, here is an example. Abbe PySpark needs, sorry, PySpark needs. I am using Scala. बोलेगा okay, sure, sorry. बहुत polite है ये रहा concat, अच्छा literal use करना पड़ेगा, तो I'll say literal like this and close the bracket here. I'll have to import literal. Done, no errors. So see this, I am generating a column, right, with column use करके। तो अभी क्या होगा मेरे पास ये भी आ गया कॉमा, एंड आई से बुकिंग आल्सो, डॉलर बुकिंग आईडी आल्सो। या अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रख के आई से डॉट सिलेक्ट। अच्छा, अगर मैं डॉट सिलेक्ट ना करूँ तो डॉट सिलेक्ट तो ओनली एंड ओनली इफ यू वांट टू सिलेक्ट सम स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉलम्स, अदरवाइज वैसे भी सब सिलेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन विद कॉलम मतलब ये एक एडिशनल कॉलम होगा, व्हाटएवर आर द नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस दिस कॉलम। जनरेटेड कॉलम का वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है अपने कोड में, ये देखो देखो जनरेटेड कॉलम आ गया B11 P001, देखो सफिक्स आ गया। गॉट इट ना? यस यस। अब मैंने क्या किया पता है, मैंने अपने कोड में, अपने ट्रांसफॉर्मर में, देखो यहाँ पे मैंने राइट ऑन द टॉप मैंने क्या किया है, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना, यहाँ पे मैंने पहले ही फिल्टर कर लिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो अहेड विद एनी बुकिंग दैट डज नॉट हैव इन्वॉल्व्ड पार्टीज। ये वैलिडेशन है ना? यस अभी वो काफका में हम लोग मैसेजेस डालते हैं कि वी आर स्किपिंग दिस एंड ऑल, वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट लेटर ऑन, दैट्स ओके, उसको छोड़ देना। सो डॉट फिल्टर इन्वॉल्व पार्टीज इज नॉट नल, एंड ये अपना हो गया। हम लोग वो बहुत इजीली कर सकते हैं, हम लोग डॉट फिल्टर इसका उल्टा कंडीशन देके सब लेके फिर वो हम लोग एक साथ काफका में डाल सकते हैं। कम ऑन, यस और नो? यप राइट, एनीवे, तो ये हो गया, तो मैंने ये कर लिया यहाँ पे। अच्छा, फिर ये ना मैंने यहाँ पे खास लिख लिया, दिस आर द डिपेंडेंट कॉलम्स। व्हाई? बिकॉज आई एम यूजिंग दिस कॉलम्स लेटर ऑन many places you will see that I am using shipment type। तो shipment type is FCL, तो shipment type जो अपने को वहां से आता है AE.AI वगैरह, वो सब नहीं क्या, AE.FI, यस वो आता है। तो यहाँ पे शिपमेंट टाइप मैंने UDF यूज कर लिया, पासिंग द शिपमेंट टाइप। तो अब ये अपने को विद कॉलम शिपमेंट टाइप क्या आ जाएगा?
FCL, LCL, एयर, वैसा Yes. सवाल। और फिर एक कॉलम है मेरे पास सेल शिपमेंट एग्जिस्ट। ये बुलियन मैंने बना लिया, अगर सेल शिपमेंट एग्जिस्ट करता है, इफ इट इज नॉट नल देन ट्रू और एल्स फॉल्स। अब यहाँ पे टू बी ऑन द सेफर साइड मुझे लिखना क्या चाहिए बताए। हो सकता है मैं 10 ऑब्जेक्ट्स ऐसे प्रोसेस कर रहा हूँ जिसके अंदर सेल शिपमेंट है ही नहीं, किसी में भी, एक में भी नहीं है, तो फिर ये फट जाएगा कोड। सो आई से HC एंड हियर आई विल जस्ट सिंपली से लाइक दिस एंड देन से नॉट नल। अच्छा, डोंट राइट इक्वल इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, नहीं नहीं नहीं, ये यूज करना पड़ेगा इज नॉट नल। अरे उसमें भी मेरा आधा घंटा गया। इज इक्वल इक्वल टू नॉट नल और वो हमेशा ट्रू ही आता था। सो दिस इज नॉट नल और इज नल, ये दो आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अगर नल नहीं है तो ट्रू, सेल शिपमेंट एग्जिस्ट। अब मैंने ये बहुत जगह यूज किया है, एज यू कैन सी दिस हियर, सेल शिपमेंट एग्जिस्ट, देखो बहुत जगह यूज किया। कैन यू सी दिस, सेल शिपमेंट एग्जिस्ट, तो ये करना है, और अगर नहीं तो नहीं करना। हाँ, यहाँ पे देखो, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉट है, डोंट फॉरगेट दिस है, ये देखो, ये भूलना नहीं तो आपको लगेगा सेम कंडीशन। ये आप देख रहे हो नॉट, Yes. अगर सेल शिपमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये करना, तो लोकेशन नेम से, अदरवाइज सेल शिपमेंट से लेना। अच्छा, मे बी टुमारो इफ यू फाइंड अ वे टू फर्दर शॉर्टन दिस, आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ टू लर्न फ्रॉम यू। I repeat, if you find a better way to write this code, which can further shorten it in the sense ये नहीं कि कहीं और ये उठा के कहीं और लिख देना है कोई फंक्शन फिर मेरे को नहीं तो वो फंक्शन में जाके दिखना पड़ेगा कि इसका लॉजिक क्या है। So, but then if you can shorten it and if you can make it more readable, more maintainable, I'll be the happiest person on earth to learn. पहले पहले मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ कुछ आप ऊपर राइट ऑन द टॉप देखोगे ना कि मैं मल्टीपल वेन्स लिखता था, वेन एंड देन लास्ट में अदरवाइज लिखता था। बट देन मुझे समझ में आया बाद में कि एक वेन के अंदर नेस्टेड वेन भी हो सकता है। Okay. A when can again have a when, so let me explain that also. Okay, चलो, तो ये हो गया अपना। I'm going to come back here and let's do this now. So I want to generate yet another column with column, okay, and I'll say generated, I'll say 2, ऐसे नाम दे देता हूँ कॉमा। बट अभी ना ये कंडीशनली मुझे जनरेट करना है, ओके। और वो कंडीशनल जनरेशन में मुझे क्या चाहिए कि और ये फिल्टर में निकाल देता हूँ, चलो, राइट। कंडीशनल जनरेशन में मुझे ये चाहिए दैट व्हेन, देखो ऐसे लिखा जाएगा व्हेन, ऑल विथ मी, राइट फ्रेंड्स। Yep. तो इसको अच्छे से अरेंज करने का, आपका विद कॉलम और स्टार्टिंग एंड एंड इधर खत्म होता है। तो व्हेन यू गिव अ कंडीशन ओवर हियर, व्हाटएवर कंडीशन यू वांट टू गिव, you can give this। अब इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, org.apache.spark.sql.functions.when, ये मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूं, आप चैट जीपीटी को पूछ लेना, यहाँ पे फर्क है, ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में फर्क है। कई जगह पे आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करोगे, वो एग्जैक्टली वैल्यू चेक करेगा। कंपैरिजन अगर बुलियन एक्सप्रेशन है तो डबल इक्वल टू यूज करोगे, ठीक है। और वो सब वो आप देख लेना। सो व्हेन आई विल से contains, I'll say dollar involved parties underscore parties contains John Doe, okay। देन क्या करना है, तो यहाँ देन नहीं लिखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, कोलन नहीं लिखना है, लाइक टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं वो नहीं करना है, कॉमा डालना है और हमको वैल्यू दे देंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, I'll say literal, I'll say John Doe present, okay। else, अब यहाँ पे ना else देना है हमारे को, तो else कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। else ऐसे नहीं देना है आपको, else के बदले डॉट आपको अदरवाइज करना है। तो when this is the condition, do this, otherwise I'll say literal and I'll say not present। ये लिख दिया, हो गया मेरा काम। Let's run this and see। अब मुझे सब रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन जहां जॉन डो है वहां पे आएगा प्रेजेंट, जहां जॉन डो नहीं है वहां पे आएगा नॉट प्रेजेंट।
दिस इज हाउ यू बिल्ड योर व्हेन कंडीशंस, दिस इज हाउ यू बिल्ड। और अपना वो जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स द पैकेज ऑफ इफ एल्स एंड इफ। कम ऑन, यस और नो? Yep. वही तो है। तो देखो यहाँ पे जनरेटेड टू, देखो जॉन डो प्रेजेंट, यहाँ पे भी जॉन डो प्रेजेंट, यहाँ पे भी जॉन डो प्रेजेंट, जहां जहां नहीं है वहां पे नॉट प्रेजेंट। ये रहा जनरेटेड टू। आप देख रहे हो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपके चल रहे हैं? Yes. इंटरेस्ट। हाँ, अदरवाइज नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट नल हो जाएगा नहीं, अगर अदरवाइज नहीं दिया तो। अच्छा है मैंने पैसा नहीं लिया तुम लोग से ट्रेनिंग का। अभी जब ट्रेनिंग प्रोग्राम था ना कॉर्पोरेट्स का, वो पूछते हैं ना, आपने को नहीं मालूम हो ना, अच्छा नहीं लगता। मेरे को नहीं मालूम, देखता हूँ क्या आएगा। नल आना चाहिए। नल। थैंक यू, गुड लर्निंग। तो अगर अदरवाइज नहीं दिया है, एंड इफ यू रियली डोंट केयर व्हाट वुड बी दी, हो सकता है ना बहुत बार ऐसा कि अगर वैल्यू है तो ये ले लिया, अदरवाइज यू डोंट केयर तो नल आ जाएगा। थैंक्स ओवेस फॉर आस्किंग दैट, ब्यूटीफुल, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर नेस्टेड ये जो इफ कंडीशन है ना, ये वाला जो व्हेन कंडीशन है यहाँ पे, क्या इसके ये भी व्हेन के साथ हो सकता है? यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो यहाँ पे अगेन व्हेन होगा, एंड देन व्हेन के साथ जो भी है वो आप वापस से यू कैन हैव दैट एंटायर थिंग। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस हियर? No, sir. Clear. ओके, अब मैंने ना बहुत सारी चीजें लिख के रखा है कि वेयर आई हैव टू actually share things with you all. So let me talk about that also and bring up. ठीक है। So I will go to. मैंने कहाँ लिख के रखा है ट्रेनिंग का? I go to Center of Excellence, Big Data, RDD। हाँ, अभी देखो, ये ड्राइवर प्रोग्राम के बारे में बताया, वर्कर नोड मैंने बताया, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशंस। ओहो, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग डेटा बनाते हैं, जब डेटा सेव करते हैं फाइल के अंदर, तो जैसा हमने रीड किया ना, वैसा मैं राइट का भी करके बताऊंगा। एंड पार्टीशनिंग में होता ये है कि पार्टीशनिंग में ये होता है कि अगर सपोज आपने बुकिंग्स को राइट किया है एक पर्टिकुलर S3 के बकेट के अंदर कोई फोल्डर में, तो आपकी सब बुकिंग्स वहां पर बन जाएगी, ऑल योर बुकिंग्स विल बी क्रिएटेड ओवर देयर। लेकिन अगर सपोज आपको रीड करना है, तो पूरा अगर 10,000 बुकिंग्स है, 1,00,000 बुकिंग्स है, तो पूरी 1,00,000 बुकिंग्स में से वो रीड करेगा। और अगर आपको 1,00,000 बुकिंग्स में से रीड करना है, तो सोचो वो कितना सारे बुकिंग्स के थ्रू it will run through 1,00,000 bookings in order to give you the data. But then otherwise, if you do partitioning, suppose on customer, so I believe we must very well have partitioning done. Tenant के लिए तो हर tenant के लिए वो अलग ही होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, अपना बकेट ही अलग होगा, हर एक टेनेंट के लिए बकेट होगा, अलग होगा। लेकिन whenever for that particular tenant, when someone logs into the system, अगर वो टेनेंट का उसमें से उसको अगर डेटा देखना है, तो उसी का डेटा दिखेगा ना, उसकी ही कंपनी का डेटा दिखेगा। सो इन दैट केस, बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी, पार्टीशनिंग होना चाहिए। बट एनीवेज, दैट वी कैन डिस्कस लेटर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ एट ऑल आई डू पार्टीशनिंग ऑन कस्टमर आईडी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर ओन this data structure itself, ये बुकिंग जिसम ले लो, यहाँ पे कस्टमर आईडी है C0144 C019799। अब अगर मैंने पार्टीशनिंग कस्टमर आईडी पे किया, तो क्या करेगा पता है? वो एक फोल्डर बनाएगा, और वो फोल्डर का नाम रख देगा C00009 अंडरस्कोर, वो कोई भी फोल्डर का नाम, जो भी फोल्डर का नाम है, वो फोल्डर का नाम बता देगा, बुकिंग्स फॉर एग्जांपल। और ये फोल्डर के अंदर हर वो बुकिंग्स रखेगा जिसका कस्टमर आईडी क्या है, C009। उसी तरह से यू सी दिस, यहाँ पे देर आर सर्टेन विच आर C04, और वो एक अलग ही फोल्डर बना देगा, ऑटोमेटिकली C004 बनाएगा, और जितनी भी बुकिंग C004 की है, वो सब बुकिंग्स ये वाले फोल्डर में रखेगा। इससे रिट्रीवल भी काफी फास्ट हो जाएगा और इंसर्शन भी फास्ट होगा, बिकॉज जब भी आप इंसर्ट करोगे तो
वेल इंसर्शन में खास फर्क नहीं पड़ता शायद, बट रीडिंग में, सो व्हेन यू रीड द डेटा which has a where clause and that where clause contains C004, then in that case it will not read those 1 lakh bookings but only those thousands of bookings which are for C004. खाली वही bucket में जाके वो read करेगा, thereby by leaps and bounds increasing the efficiency and enhance efficiency of read. Fast read होगा, right? इसके ऊपर और रिसर्च करना है. Partitioning is a key thing for performance, इसको भूलना नहीं है. And I believe Murli is crystal clear on the concept of partitioning. Yeah, Yeah. yeah. Crystal clear है, तो मुरली के गाइडेंस में हम लोग we will make sure that the partitioning is properly done. And partitioning करते टाइम मुरली right on the top of our mind is supposed to be what? Where clauses, right? Queries. Yes, absolutely, absolutely, very. तो तुफैल अपने को ये ध्यान में रखना है while creating partitioning for the tables for business intelligence. ठीक है तुफैल? यस भाई. ओके, क्लोजर्स. अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजर्स का, तो ये मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया है और सबको इसका एक्सेस है, आप लोग ये जरूर देख लेना. बिग डेटा का सबको एक्सेस है ना, बिग डेटा शेयर परमिशंस. ओके ठीक है. सो राइट, सबको एक्सेस है इसका. ठीक है, अब ये क्या है पता है ना, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. सब अच्छा है, अगर ये नहीं भी पढ़ोगे ना तो एक चीज आप गांठ बांध लो तो यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम. एंड व्हाट दैट इज, सी दिस, you are starting the processing of your data frame from here. All with me, right friends? Yes. You are processing the data, you started processing the data from here. Never ever use the value of any variable that is defined here, which you would want to update. तो यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल नहीं डिफाइन करना, x is equal to you say 5, जिसकी वैल्यू आप यहाँ से अपडेट करो, कभी नहीं करना. Why? Because this will not be inlined and it will not be sent to all the nodes at all. This value will be available only and only for the driver program. आप समझ रहे हो? ये जो डेटा फ्रेम है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पूरा के पूरा ये जो ऊपर है ये पूरा ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. राइट, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. एंड इट ऑल मींस दैट लोग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एंड जस्ट डू यू नो, ये जरूर देख लेना. ट्रांसफॉर्मेशंस तो मैंने आपको बताया है. अंडरस्टैंडिंग एक्शंस, आप अगर ये आरडीडी एक्यूमुलेटर्स एंड ब्रॉडकास्ट वेरिएबल्स अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, सो दिस इज हाउ इट इज. ये वाला है, ये वाला करेक्ट. पैरेललाइज कलेक्शंस, पैरेललाइज मतलब वी कैन पैरेललाइज द प्रोसेसिंग स्टफ एंड ऑल. ये तो अच्छे एग्जांपल्स के लिए उन्होंने दिया है ऑपरेशंस. और यहाँ पे देखो उन्होंने दिया है shared variables broadcast. So you can actually create a variable, the value of which will be broadcasted across all the instances in the cluster, across all the nodes in the cluster. Accumulators also, there are certain functions which are accumulators, which is again distributed across multiple nodes in the cluster, which you know enhances the performance. So this is something that you must know. RDD पर which storage level to, अभी सुनो, कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी. So ये है कि what they used to do, now this is worth listening. अपना मुरली, आतिक, everyone else, तो fail everyone. वो लोग क्या कर रहे हैं पता है? वो लोग क्या करते हैं, मैं फरहान की बात कर रहा हूँ एक्चुअली. व्हाट फरहान you know does is that, उनको उसके पहले की कंपनी में ताबंत में what they used to do is that they used to have EMR on these Spark programs used to run, and they used to keep in memory, and they used to use a function called persist. There is a function called persist which helps you to persist the data in memory. जो भी डेटा आपका प्रोसेस हो गया ना, वो मेमोरी में रखता है. वो मेमोरी में रखने के बाद then you use something called Apache Levy. Apache Levy. This is used, and this is you know all assembled and configured in such a way that using Apache Levy you can make a RESTful API call to the data that is persisted in memory. Super fast retrieval आता है उनका. डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, S3 में स्टोर नहीं होता, मेमोरी में ही रहता है. So if you want to do something like that, you can very well do it with the help of persist. और दूसरे भी बहुत सारे इसके फायदे हैं persistence के.
कि ये है कि इट एक्चुअली स्टोर्स इन मेमोरी। अब अगर ये मेमोरी में स्टोर करता है तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है ना, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो वो परसिस्टेंस का मैकेनिज्म कंप्लीटली टेक्स केयर कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बराबर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है परसिस्टेंस, राइट। कैश में डेटा रखता है, दैट्स कॉल्ड कैशिंग द डेटा। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज there's another important point. So there are certain functions which are kind of, okay, so there are certain functions, certain things which are actions, and there are certain things which are transformations. तो ये देखो, ये रहा, मैं आपको transformation, these are all, map is a transformation, filter हमने use किया ना, filter, it's a transformation, flat map transformation, map partitions part, तो मैप पार्टीशंस, अभी इसको एक एक बार भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब जब आप लिखोगे ना, द एक्चुअल प्रोसेसिंग डजंट स्टार्ट, द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स ओनली एंड ओनली व्हेन यू एग्जीक्यूट एन एक्शन ऑन द डेटा फ्रेम, दीज आर द एक्शंस। व्हेन यू एक्चुअली से रिड्यूस, प्रोसेसिंग चालू होगा। व्हेन यू एक्चुअली से कलेक्ट, प्रोसेसिंग चालू होगा। व्हेन यू एक्चुअली से काउंट, फर्स्ट take sample, take order, save text file, save as object, count by for each. When you execute these functions, these are actions only, then the processing starts. What I mean to say is, ये इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने लिखा है, ये और ये इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा till the time I do not say till the time I do not say sort, या फिर कोई टर्मिनेटल सॉर्ट से भी नहीं होगा, नहीं, आई डोंट थिंक सो। सॉर्ट इज आल्सो अ सॉर्ट बाय की, ओके, या दिस इज आल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल नॉट एग्जीक्यूट, नहीं करेगा वो, सॉर्ट बाय की भी नहीं करेगा, राइट, सॉर्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे टिक 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 सॉर्ट, हाँ, नहीं करेगा। बट व्हेन यू परफॉर्म एनी वन ऑफ दीज एक्शंस, देन, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिखना स्टार्ट। The moment I execute something like group by or count by key or count by this, that, तब वो action execute करेगा, then it will execute everything and then it will give the result. For example, if I say dot show over here, dot show, then yes, it will certainly 101% execute everything and then show it, right? That's how it is. But I am just taking that up and then I'm saying write, तो जैसे वो write encounter करेगा तो वो सब processing start करेगा. That's the important point. Okay, then this is what I wanted. अच्छा, about partitions मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, इसको प्लीज आप अच्छे से पढ़ लेना। और ये मैंने चैट जीपीटी से भी जो मिला था, वो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था चैट जीपीटी में, मैंने ले लिया। ये मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया आप लोगों को, लेकिन देयर आर सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स। डेटा फ्रेम प्रोसेसेस ईच रो लाइक इन केस ऑफ स्ट्रीम दैट यू रन ओवर अ कलेक्शन इन जावा। ये जो भी हमने अभी प्रोसेसिंग किया है ना, ये हमने जो भी प्रोसेसिंग यहाँ किया, जो भी हमने सीखा, ये जो भी किया, ये विद कॉलम एग्जीक्यूट होगा फॉर ईच रो, राइट, ये विद कॉलम एग्जीक्यूट होगा फॉर ईच रो, फिल्टर एग्जीक्यूट होगा ईच रो पे। सो व्हाटएवर प्रोसेसिंग यू आर डूइंग ओवर हियर, इट एग्जीक्यूट्स ऑन ईच एंड एवरी रो। यू गॉट द पॉइंट? Yep. एक मेरा कंसर्न क्या था बताए मुरली? Yeah. कंसर्न ये था कि यार ये वाला जो यूडीएफ है, यूडीएफ नहीं, स्पेशली ये हैज, ये बिकॉज ये तो बहुत हैज कॉलम, Yes. Yes. एचसी वाला था ना, किधर ये मैंने एचसी वाला, हाँ ये रहा, चलो ओके, ये मैंने यूज किया है, मैं इसको एन में ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ फटे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर 1000 रोज है तो 1000 बार ये फंक्शन कॉल होगा, हाँ 1000 बार फंक्शन कॉल होगा, विच इज ऑल्सो ओके। अभी फॉर एग्जाम्पल ये तो 1000 बार कॉल होगा ही होगा, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज इसके अंदर ट्राई यूज किया हुआ है। हाँ। Yes. किधर गया हुआ यार, सॉरी, ये रहा, राइट, इसके अंदर ट्राई विल ऑलवेज व्हेन दिस एग्जीक्यूट्स देयर विल बी उसके अंदर, मतलब इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। Yes. और एक्सेप्शन बार बार थ्रो होना इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। Yep. तो मैंने देखा कि वो एक्चुअली ना एक ही बार यूज करता है, यार इसको क्या करता है अंदर, क्या मैजिक करता है पता नहीं। बट एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी रोज ओवर हियर, देयर आर सो मेनी रोज हियर, राइट, बट देन दिस विल एग्जीक्यूट ओनली वंस। ये एचसी जो है ना, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, सी फॉर योरसेल्फ। स्टार्टिंग में एक बार एग्जीक्यूट होता है, कुछ असाइन करता है, कुछ रजिस्टर कर लेता है, मुझे पता नहीं क्या करता है वो, बट देन बार बार अगर 10,000 रोज है तो 10,000 बार वो एचसी कॉल नहीं होता। Okay. Okay.
पता नहीं कैसे क्या करता है वो। ये देखो, ये अपना इतना सारा रोज प्रोसेस हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो जो पाथ मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना, हाँ, आई वाज प्रिंटिंग द पाथ ना, किधर है पाथ पाथ पाथ, ये रहा पाथ। देखो एक ही बार एग्जीक्यूट किया उसने, हाँ, it did not execute 10 times for 10 rows. करेक्ट करेक्ट। So then I was kind of happy, I was kind of happy. So this is how it is. So this works. Going back to ClickUp. So ये बात clear हो गया, data frame is like, is वो internally it's actually columnar database, and आप जब process करोगे तो row by row process करता है। Yes. Clear है सबको? Yes. Okay. So data frame is set of rows. A row has column. Like in case of SQL, you fire a select statement that returns rows. अच्छा, अभी एक चीज और है. You can very well do something like this, huh? You can very well do something like this. देखो bookings df हमने किया, bookings df here, bookings df. I can do something like this. I can say bookings df dot create or replace temporary view, and I will give the name of the view. I'll say bookings. ये तो अब ये एक SQL टेबल ही बन गया राइट। मेमोरी के अंदर। Now I can say, अब इसको val, I'll say no, I'll say spark session dot, I'll say SQL. Can you see this here? I'll say select star from bookings. देख रहे हो आप? यस। Right? I'll say dot show. हो जाएगा बस खलास। I'll say if true. ये देखो, this is how मेरे को आगे का कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, यहाँ से if true return. So मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये चलेगा, it works like a charm. Select star from bookings, and now this will work as good as SQLs. यस। Just that I was not comfortable doing this entire thing with this kind of, because अब इसके अंदर columns वो मेरे को जमा नहीं, वो dot with column रीडेबिलिटी नहीं मिल रहा था। करेक्ट। और मेरे को इतना बड़ा सिलेक्ट स्टेटमेंट वगैरह somehow मेरे को नहीं जमा। अगर आप और अच्छे से कर सकते हो, या कोई देखो एक चीज है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन में कोई अप्रोच ज्यादा सही लगेगा आपको, कोई ट्रांसफॉर्मेशन में कोई, राइट, ऐसे। सो ये देखिए, आई गो बैक ओवर हियर, आपको ये डेटा मिल गया, ये देखो ये रहा, ये पूरा डेटा आ गया आपको, ये रहा, ये देखो सही है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुकिंग। अब जैसा मतलब एग्जैक्टली जो आप एसक्यूएल लिखते हो ना, वेयर आई विल से booking underscore ID is equal to B11, चलना चाहिए ये, वो एक ही रिकॉर्ड है। और पहले ना जितना भी सब लोग कोड लिखेंगे, आई वांट दैट कोड टू बी ऑडिटेड, क्रॉस ऑडिटेड, हाँ, मतलब पेयर ऑडिट करना है। देखो एक ही रिकॉर्ड आया, राइट। जैसा आप नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो डेटाबेस में, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट आप यहाँ लिख सकते हो इन ऑर्डर टू प्रोसेस द डेटा। अब ये जो है ना, ये रिप्लेस टेम्प व्यू यहाँ बनेगा। सपोज यू वांट टू क्रिएट अ व्यू which is kind of global and you must be able to access it across the nodes, एक पूरा common कुछ global बनाना है, तो there is also an option to say create or replace global temp view, right? create global, create or replace global, ये आप कर सकते हो। तो अगर ऑलरेडी नहीं है तो बना देगा, और ऑलरेडी है तो रिप्लेस कर देगा, नहीं तो नया बनाएगा। एंड दिस विल बी ग्लोबल अक्रॉस, सो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट विल कैश इट, ऐसा सब है, तो और भी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगा। सो इफ यू हैव सम डेटा व्हिच यू वुड वांट टू यूज एक्सटेंसिवली फ्रॉम मेनी प्लेसेस, then in that case this is, it's like common data कुछ एक कैश में रख लिया है और वो बहुत जगह से यूज किया है। अब ये इतना पावरफुल है, यू कैन डू जॉइंस माय डियर। यस, आप जॉइंस कर सकते हो, और डॉट आई से देखो जॉइन का ऑप्शन है। अच्छा, सिलेक्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल से भी जॉइन कर सकते हो, अदरवाइज ऑल्सो आप जॉइन कर सकते हो, बहुत पावरफुल है। राइट। तो दो तीन डेटा सेट्स भी होगा तो आप जॉइन कर सकते हो उसको।
इट्स वेरी पावरफुल, यू कैन डू दिस वेरी वेल। जो भी करना है एक चीज दिमाग में रखना है, मेंटेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। Yes. परफॉर्मेंस मस्ट बी ऑप्टिमल एंड इट मस्ट बी मेंटेनेबल। Yes. आप माइंडसेट को चेंज करो, वो जावा का एक एक ऑब्जेक्ट जो प्रोसेस करते थे उससे बाहर आना है। एंड यू गॉट टू गेट योरसेल्फ इनटू द वर्ल्ड ऑफ बिग डेटा। डू नॉट फॉरगेट यू आर प्रोसेसिंग डेटा इन गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स, इन फ्यूचर पीटाबाइट्स, Yes. राइट? ऐसे है। और वो तो सोचना ही नहीं, ऐसा तो करने का सोचना ही नहीं है कोई, ये करना ही नहीं है इसका, बोले मैं एरे बना लूंगा, मैं एरे में लूप करूंगा, मैं कुछ फाइंड करूंगा, कोई वेरिएबल में स्टोर करूंगा, फिर वो वेरिएबल में वापस नीचे यूज करूंगा। खबरदार ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। प्रोसेस यहीं पर ही करते 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 चलना है, फाइनली आपको एक डेटा सेट मिलना चाहिए। Got it? This is what. Okay, so going back here to ClickUp. Deducted नहीं, deduced by Spark even if, हाँ ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, नल वाला अगर वो कॉलम है ही नहीं एक भी रिकॉर्ड में तो वो एरर फेंक देगा, Right. और अगर एक में भी है तो एरर नहीं फेंकेगा, बाकी सबका नल देगा। तो इन ऑर्डर टू काउंटर बोथ द सिचुएशंस वी हैव यूज्ड दैट HC वाला जो मैंने बताया ना वो। Yes. Okay. Call column name can be used in order to refer to the column. Any one of the two can be used. यहाँ पे अगर डॉलर यूज करोगे तो आपको implicit Spark implicit को import करना पड़ेगा। User defined function can be used for complex transformations, बता दिया। When and otherwise can be used for conditions, बता दिया। Can be used to select columns downstream, बता दिया है। Drop duplicates, और बहुत फंटास्टिक लगा मेरे को ये फीचर, मजा आ गया क्योंकि अपना काम हो गया उसके अंदर। एक ही पर्टिकुलर बुकिंग हो सकता है कि वो अभी, बिकॉज हमारा जो लॉजिक है वो क्या करता है, लास्ट 3 दिन का डेटा लाते रहता है हर आधे घंटे में। Yes. तो लास्ट 3 दिन का डेटा जो है अभी आधा घंटे पहले चला तो उसने डेटा लाया, आधे घंटे के बाद चलेगा तो वापस से वही डेटा वो लेकर आएगा ना। Correct. Yes. तो मेरा S3 में तो जाएगा ना वो डेटा। Correct. अब जो S3 में जाएगा तो मुझे तो कोई एक ही चाहिए ना, 10 बार आया तो लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए। सो आई हैव ड्रॉप्ड द डुप्लीकेट्स बाय दिस, सी दिस, ये रहा ड्रॉप डुप्लीकेट बुकिंग GID एंड OTM अपडेट डेट। तो अगर सेम बुकिंग वही अपडेट डेट का वापस आया है तो मुझे उसमें से कोई एक ही चाहिए। Correct. Yes. तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स वर्क्स लाइक अ चार्म। तो ये देखो अभी यहाँ पर भी मैं अभी जाऊंगा तो अपने पास है एक्चुअली, यू नो अभी अपने पास है, तो आई से डॉट ड्रॉप duplicates, you can see this here, drop duplicates, and I'll say, इसको मैं निकाल दूंगा, drop duplicates by what, I'll say by customer ID। तो अगर जितने भी अभी रिकॉर्ड्स है जहां पे डुप्लीकेट कस्टमर आईडीज है वो उसको, ओ क्या हो गया, तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स विद अल्टरनेटिव एवोरेटेड डुप्लीकेट डुप्लीकेट्स, साइज आ रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं यूज करता हूँ, उसको तकलीफ है तो, और मैं इसको भी ये कर देता हूँ, एंड देन आई बिलीव आई कैन वेरी वेल यूज दिस ओवर हियर। ड्रॉप, अच्छा ड्रॉप करोगे तो कॉलम ही ड्रॉप हो जाएगा पूरा, कोई भी कॉलम ड्रॉप करना, ड्रॉप डुप्लीकेट्स Yes. एंड ऐसा ही ना, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, अच्छा नहीं 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 नहीं, ये सीक्वेंस देना है। ओके, सो सीक्वेंस ऑफ, यू कैन स्पेसिफाई द कॉलम्स, राइट? सो आई विल से द कॉलम हियर इज कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अब जितना भी ये कस्टमर अंडरस्कोर आईडी है, yeah, right, so that's how you specify. So this is also very fantastic thing। तो ये मैंने शेयर किया आपके साथ। Filter can be used, yes, filter as usual, filter can be used। अभी now the next thing is delta lakes। Delta lakes, this delta lake is a special format in which the data is stored, and the format actually is nothing but the Parquet files, और इसको डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। सो अभी what I suggest is, अभी मैं आप लोगों को एक काम दे देता हूँ। ओके, ये हो गया, एंड लेट मी write a few other points also।
Okay. Question. I want you all to do practice rest of the day on this. Tomorrow we will connect again and we will have an hour or a 2 hours should be sufficient on Delta Lake. Getting the point? Yep. Yes, we will have 2 hours tomorrow on Delta Lake. So this, and we will start at 10:30 tomorrow in the morning, 10:30. 2 hours, 10:30 to 12:30 on Delta Lake. It's very simple stuff. Today we have focused more on read. Tomorrow we will be writing as well. Getting the point, friends? Tomorrow what we will be doing, we will be writing as well. Small. So, bolo. Any doubts, any questions?